Good morning, students. As you know that in previous classes we have discussed about the grim situation in Russia and the autocratic rule of Romanov dynasty, Nicholas II. In that lecture, I had told you that Zarina Alexandra, the wife of Nicholas, and his advisor Rasputin also, and their corrupt officials. And the situation in Russia was very critical at that time. Even the daily wage workers and the demands of food was very increasing because there was lack of food supply in Russia due to the First World War. As you know that Russia involved in World War First, and the entire situation was very bad. So people decided to revolt against the autocratic power of Tsar Nicholas II, and today we are going to talk about the February Revolution in Petrograd. Petrograd is a city in Russia, you know. So here we go. In the winter of 1917, conditions in the capital Petrograd were grim. 1917 में विंटर का टाइम था और रसा का जो समय कैपिटल था पेट्रोग्राड, उसकी स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं थी. पीपल वर डेस्परेटली वेटिंग टू चेंज. दे वर लुकिंग फॉर पॉलिटिकल चेंज इन रसा because the government was inefficient and unable to control the prices, the shortage of food, and all the things. And there was no any ray of hope for the people, and the government officials and the entire members of the government means the monarch, Tsar Nicholas II I'm talking about, everything was going in bad condition. Situation was very bad and people were looking for change, so they decided to went against Nicholas II. The layout of the city seemed to emphasize the divisions among its people. The workers' quarters and factories were located on the right bank of river Neva. In नेवा नदी के निकट पर, वहाँ किनारे पर वर्कर्स का क्वार्टर और फैक्ट्री स्थित है, उसका राइट बैंक साइड में, ठीक है ना. ऑन द लेफ्ट बैंक वर द फैशनेबल एरियाज, द विंटर पैलेस. दिस वाज द मेन बिल्डिंग वेयर किंग वाज देयर and he used to live. Now, official buildings including the palace were the Duma met. Duma was the parliament of Russia, you know. In February 1917, food shortage were deeply felt in the workers' quarters. मैंने पहले ही बता दिया था कि फूड शॉर्टेज की किल्लत थी वहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम चल रहा था. वर्कर्स की स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं थी. And the winter was very cold. As you know that in Russia, weather condition is very cold always, all the time. And you know that Siberia is a place in Russia that is one of the coldest place of this world. So people were facing extreme situation at that time. There had been exceptional frost and heavy snow. काफ़ी हिमपात हो रहा था, काफ़ी बर्फ गिर रहा है वहाँ पर. विंटर की बात कर रहा हूँ मैं, फरवरी 1917 की. Parliamentarians wishing to preserve elected government were opposed to the Tsar's desire to dissolve the Duma. वहाँ पर चाह रहे थे कि जार की जो पावर थी, जार की जो सत्ता थी, उसको डिसॉल्व करके एक नई गवर्नमेंट को, एक नई सिस्टम को लोगों को मन था वहाँ पर कि चुना जाए, उसको फिर से इलेक्ट किया जाए. और वहाँ पर एक और सोच थी क्या कि जार को है एब्डिकेट करने के लिए फोर्स किया जाए. एब्डिकेट मतलब किंग को उसके पावर को डिज़ाइन करने के लिए फोर्स किया जाए, उसको अपने गद्दी को छोड़ने के लिए कंपेल किया जाए. ऐसा लोगों ने अब डिसाइड कर लिया था. तो ऑन February 22, a lockout took place at a factory on the right bank. वर्कर्स ने क्या कर दिया, हड़ताल कर दिया. The next day, workers in 50 factories called a strike in sympathy. ऐसा देखने के बाद और भी फैक्ट्री के जो वर्कर्स थे उन्होंने भी सिंपैथी में आकर के स्ट्राइक कर दिया. बहुत सारे फैक्ट्रियों में महिलाएं भी काम कर रही थी. This came to be called the International Women's Day. Student, as you know that we all know that on 8th of the March we celebrate International Women's Day. This day was celebrated all across the world due to this effort, due to this incident which occurred in Russia. रसिया में जो घटना घटी थी उसी वजह से पूरे दुनिया में इंटरनेशनल वीमेंस डे मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है. आप पूछेंगे सर 8 मार्च आप क्यों बता रहे हैं?
8 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है और जो इंडिया के अंदर जो कैलेंडर चलता है और भी अलग अलग कंट्री जो कैलेंडर्स हैं उसमें डेट ये वैरी करता है। तो इट डज नॉट मैटर इन इंडिया एट दैट टाइम, दिस इज द मंथ ऑफ मार्च, ओके, और इट इज another calendar. That's why there is a difference in the date. You can see in this picture people are gathering and the Petrograd Soviet meeting in the Duma in February 1917. This is the Petrograd Soviet. This was the assembly. You can see that in Duma. You can see the picture. Petrograd Soviet. Yeah. Demonstrating means प्रदर्शन कर रहे थे वहाँ पर वर्कर्स जो थे और फैक्ट्री क्वार्टर्स से निकल करके वो कैपिटल रीजन में आ चुके थे और वो पूरे तरीके से अब चाहते थे कि राजा को उसके पॉलिटिकल कंट्रोल से हटा करके एक नए सिस्टम को वहाँ पर लाया जाए और पूरी तरीके से लोग परेशान थे, मतलब बिल्कुल हताशा की स्थिति थी एकदम। राजा ने कुछ भी कंट्रोल नहीं किया। एक तो देश की स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी थी, लगभग 3 मिलियन रिफ्यूजी रसिया में उस समय हो चुके थे, क्रॉप्स फेल्यूर हो चुका था, बिल्डिंग्स वगैरह सब डैमेज हो चुके थे। वर्ल्ड वार की वजह से रसिया का देयर वाज ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी एट दैट टाइम, सो यू कैन इमेजिन द सिचुएशन ऑफ रसिया। सो वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन all they were all looking for change and the movement took place as the fashionable quarters and official buildings were surrounded by workers. वहाँ पर जो वर्कर्स थे उन्होंने सबको घेर लिया, जो भी सरकारी वहाँ पर कार्यालय थे, जो भी भवन था, सबको उन्होंने घेराव कर दिया। द गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ कर्फ्यू नो, इसमें किसी व्यक्ति को घर से बाहर मूव करने की इजाज़त नहीं होती है, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेटर को क्रश करने के लिए किंग ने इस स्टेप को लिया होगा, सर्टेनली आप जानते हैं। डेमोन्स्ट्रेटर डिस्पर्स्ड बाय द इवनिंग बट दे केम बैक ऑन 24th, लेकिन अगले दिन फिर 24th और 25th को वर्कर्स फिर से गैदर हो गए और गवर्नमेंट ने फिर इसको दबाने के लिए, क्रश करने के लिए कैवेलरी बुलाई, घुड़सवार सैनिकों की फौज को कैवेलरी कहते हैं, ठीक है ना, एंड पुलिस टू कीप एन आई ऑन देम। वर्कर्स के द्वारा जो वहाँ पर अपराइजिंग किया जा रहा था, वहाँ पर जो रिवॉल्ट किया जा रहा था, उसको क्रश करने के लिए किंग के द्वारा कैवेलरी को कॉल किया गया। Sunday 25th of February the government suspended the Duma was the parliament, लेकिन यहाँ भी बिल्कुल उसका ही डिजायर चलता था जो किंग था, कि किंग के पास सारे पावर्स थे और उसने अपने हिसाब से सब कुछ डिसाइड किया। Politicians spoke out against the major demonstrators returned in force to the streets of the left bank of the 26th. On the 27th the police headquarters were ransacked. जो भी पुलिस हेडक्वार्टर्स थे वहाँ पर लूटपाट किया गया वर्कर्स के द्वारा और स्ट्रीट्स में सभी लोग इकट्ठे हो गए। थ्रॉन्ग मतलब जमा हो जाना, ठीक है ना। और लोगों ने स्लोगन पढ़ना शुरू कर दिया कि वी नीड ब्रेड, वेजेस, बेटर आवर्स एंड डेमोक्रेसी। लोगों का ये डिमांड था, इसको आप याद रखेंगे। वाई वाज द रेवोल्यूशन ऑफ रसिया? दिस वाज द रीजन। पीपल वर लुकिंग फॉर दिस थिंग्स एंड दे वांटेड टू चेंज। द गवर्नमेंट ट्राइड टू कंट्रोल द सिचुएशन बट सिचुएशन वाज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। सरकार ने अपने हिसाब से सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन स्थिति दिन प्रतिदिन और बद से बदतर होती चली गई। फिर से कैवेलरी को कॉल किया गया, सैनिकों को बुलाया गया। However, the cavalry refused to fire on the demonstrators, लेकिन कैवेलरी ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। They refused to open fire. An officer was shot at the barracks of a regiment and 3 other regiments mutinied. और कई जगहों पर यहाँ पर देखा गया कि रेजिमेंट में लोगों ने गोलियां चलाई, लोग मरे भी, विद्रोह हो गया बिल्कुल। वोटिंग टू ज्वाइन द स्ट्राइकिंग वर्कर्स। बाय दैट इवनिंग सोल्जर्स एंड स्ट्राइकिंग वर्कर्स हैड गैदर्ड टू फॉर्म ए सोवियत। और वर्कर्स ने अपनी एक संगठन बनाई जिसका नाम था सोवियत। जो पिछले पिक्चर में आपको दिखा रहा था सोवियत पेट्रोग्राड, उसका फॉर्मेशन वहाँ के वर्कर्स के द्वारा किया गया। इस बात को आप याद रखना, सोवियत वर्ड का मतलब क्या होता है? काउंसिल, एक समूह, a collective group of people is called Soviet or Council. And you know that Russia was earlier known as USSR, Union Soviet Socialist Republic. Union Soviet Socialist Republic, as I have already told you in previous lectures. रसिया का डिसोल्यूशन जो है, USSR जो है, इसके अंदर बहुत सारे कंट्री थे, नॉट ओनली रसिया, लिथुआना, एस्टोनिया, पोलैंड वगैरह बहुत सारे कंट्रीज के पार्ट हुआ करते थे, जिसका डिसोल्यूशन 1991 में हुआ। USSR वाज डिसॉल्व इन 1991। USSR को 1991 में डिसॉल्व किया गया। ये एक अलग स्टोरी है, मैं बाद में कभी बात करूंगा इस पर। सेम बिल्डिंग एज द ड्यूमा मेट
वहीं पर सोवियत पेट्रोग्राड का फॉर्मेशन हुआ, जहाँ पर ड्यूमा की मीटिंग होती, जो वहाँ का पार्लियामेंट हुआ करता था, ठीक है ना। दिस वॉज द पेट्रोग्राड सोवियत। पेट्रोग्राड वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ रशिया एट दैट टाइम, दैट्स वाई द नेम केप्ट फॉर द कैपिटल। द वेरी नेक्स्ट डे डेलीगेशन वेंट टू सी द जार। अगले दिन जो सोवियत पेट्रोग्राड का जो प्रतिनिधिमंडल है, जो डेलीगेशन है, जो एक कुछ खास लोगों का जो समूह था, मंत्रिमंडल आप नहीं कह सकते आप इसको। डेलीगेशन का मतलब एक होता है कि अपने ही वर्कर्स में से कुछ लोगों को चुन करके सरकार से बात करने के लिए भेजा गया प्रतिनिधि को डेलीगेशन कहते हैं। क्योंकि उस समय तो गवर्नमेंट कोई डेमोक्रेसी था नहीं कि वहाँ पर मैं आपको कोई कैबिनेट मिनिस्टर थे या फिर कोई रिप्रेजेंटेटिव थे। डेलीगेशन का मतलब यहाँ पर यही। मिलिट्री कमांडर से एडवाइज्ड हिम टू एब्डिकेट। जार को उसके मिलिट्री कमांडर ने क्या सलाह दिया कि आपको पद छोड़ देना चाहिए, यू शुड गिव अप। ही फॉलोड देयर एडवाइस एंड एब्डिकेटेड ऑन टू मार्च। 2 मार्च को राजा ने अपने पद को त्याग दिया, बिकॉज ही वॉज कंपेल्ड टू डू दैट। सोवियत लीडर्स एंड ड्यूमा लीडर्स फॉर्म्ड ए प्रोविजनल गवर्नमेंट। अब सोवियत लीडर्स ने और ड्यूमा को जो लीडर्स थे, पार्लियामेंट के जो कुछ नेता थे, उन्होंने मिलकर के क्या बनाया, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना को आप याद रखिए। दिस वॉज द रिजल्ट ऑफ द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन। दिस वॉज द रिजल्ट ऑफ फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन। आई टेल यू, कोई पूछेगा कि what was the result of February revolution, तो आप बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट। प्रोविजनल गवर्नमेंट किसने बनाया, सोवियत पेट्रोग्राड एंड लीडर्स ऑफ ड्यूमा। 2 मार्च को क्या हुआ, किंग को फोर्स किया गया, एब्डिकेटेड, उसको पद छोड़ने के लिए किंग को। तो ये इसका रिजल्ट था। इसको आप याद रखेंगे कि फरवरी रिवॉल्यूशन का परिणाम क्या था। तो इसमें आप ये लिख सकते हैं इसको पॉइंट में कि सोवियत पेट्रोग्राड और ड्यूमा के लीडर्स ने मिलकर के क्या किया, वहाँ पर प्रोविजनल गवर्नमेंट का, प्रोविजनल मतलब ये तात्कालिक होता है, फॉर सम मंथ्स, फॉर सम particular works the government is formed, provisional government, it was not a permanent one. 2 मार्च को किंग को एब्डिकेट किया गया, दिस वाज द रिजल्ट, ओके, यू नो। एंड द प्रोविजनल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री, देश को चलाने के लिए गवर्नमेंट बनाया गया। रशिया के फ्यूचर अब किसके हाथों में था, प्रोविजनल गवर्नमेंट के हाथों में था। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसाइड किया और उसमें क्या कहा गया, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, मतलब सबको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। पेट्रोग्राड हैड लेड द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन। आप सभी को मालूम है कि सोवियत काउंसिल का जो फॉर्मेशन हुआ, पेट्रोग्राड सोवियत इज द सेम वर्ड। पेट्रोग्राड हैड लेड द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन, यू नो, दैट ब्रॉट डाउन द मोनार्की इन फेब्रुअरी 1917। तो फेब्रुअरी 1917 में क्या हुआ, फेब्रुअरी 1917 को मोनार्की का एंड हो गया, मोनार्की एंडेड अप। मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जार निकोलस सेकेंड का जो शासन था, उसका जो रूल था, वो एंड हो गया। ही वॉज फोर्स्ड टू एब्डिकेट, मतलब उसको उसके पद को छोड़ने के लिए कंपेल किया गया। ही वॉज फोर्स्ड बाय द पेट्रोग्राड सोवियत एंड द ड्यूमा लीडर्स एंड द मिलिट्री एडवाइजर, मिलिट्री कमांडर हैड एडवाइज्ड किंग टू एब्डिकेट ऑन 2 मार्च। So this was the main motto of this lecture, to tell you about the situation of Russia at that time in February 1917 and all circumstances which led to the abdication of king. So I think that you have got it, and if you have any problem you can comment over this, and thank you all.